मैं अपनी अगली मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए डॉक्टर दीप्ति सिंह हाडा जी का, जो कि नगर उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर दीप्ति सिंह हाडा जी के लिए। और मैं चाहूंगी वो मंच पर आए ताकि हम उनसे बातचीत कर सकें और जानें कि आखिरकार वो कैसे बेहतर कार्य कर रही हैं और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर दीप्ति सिंह हाडा जी के लिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि हम जब उनसे बातचीत करें तो ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि आखिरकार वो कैसे जो समाज है उसे नई जगह, उसे बेहतर जगह बनाती हैं, और क्या उनकी चुनौतियां रही हैं, क्या उनका लक्ष्य है जिसे वो हासिल करने के उद्देश्य से काम कर रही हैं। तो बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीप्ति सिंह हाडा जी, और ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। ओवर टू यू सोनाली। बिल्कुल कीर्ति, आप भी आ जाइए और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीप्ति जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर। और पहला सवाल थोड़ा इमोशनल चीज़ से शुरू करते हैं कि आपने बहुत ही छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो दिया। आपको जो अभी तक का आपका सफ़र रहा है, प्रेरणा कहाँ से रही और इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? जो अभी तक आप अभी अगर पीछे मुड़ के देख रही हैं तो जो संघर्ष आपने किया है उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं और उस संघर्ष ने कितना निखारा है आपको? First of all, I would like to thank the Z Media and the beautiful anchors over here and all the elite guests from here who are present. Thank you so much for inviting me here. This is a good occasion. We are here honoring the police officers and the force who are protecting us day and night throughout the day. So coming back to your question, see, I lost my father in a very younger age, but that is destiny, something which is not in your control. But of course, my mother is a very strong lady. She was an independent lady, qualified in her times, working in the central government services. And she always taught me that struggle is not the part of life. Life is struggle. And you always have to be putting efforts to make things better. So once you start learning things from a very early age like this, that you have to fight every day. And survival is a question when it comes to you that you are a only daughter of a single mother. So you gradually learn things and you learn to deal with the society and the societal pressures. So when I look back, I really feel blessed. I really feel thankful to all those till today who are part of my education, my journey in my services, in my job, that fortunately I have really got the good people around who are always supportive. I would like to mention here my mother, my husband, my chairman, Shri Suresh Bhadoria, that I have really been blessed that I have got good platforms in my life where I am presently also, and I was able to show my capabilities. So somewhere, if God was unfair that I lost my father in younger age, He compensated in a way that I was always blessed through good people who supported me as and when required. आपने कहा कि लाइफ स्ट्रगल है, लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, लाइफ खुद ही स्ट्रगल है। और जब स्ट्रगल आता है तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, मन से भी और बाहर से भी। और अगर हम बात करते हैं जिस तरह से हम आपके बारे में जान रहे थे कि 12 साल की उम्र में आप बच्चों को पढ़ाना आपने शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं एक वो लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप करती है। वो जो स्ट्रगल था और वो जो दौर था, उसने आज के वक्त में आपको कैसे कन्वर्ट किया, उसको कैसे देखती हैं आप? See, 12 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू किया तो I just count this also as a blessing only. I would like to mention here कि my mother was working in BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited, and it happened to be that we were residing in the residency area. अब क्योंकि ये पुलिस वालों का सम्मान है, बहुत लोग इनमें से शायद जानते होंगे कि उस समय के उनके जो DIG साहब थे, मिस्टर प्रमोद फलनीकर, I used to teach his son, and it's really good that I got to know people who have achieved something with their hard work, with their education, with the consistency they have shown towards their dreams. So eventually I learned those things only. And this day is really special because this has shaped my journey throughout. I was in the residency area जहाँ सारे bureaucrats रहते हैं, वो मेहनत करके ही उस जगह पे पहुँच पाते हैं, मोस्टली बहुत humble background से होते हैं. So when you look at them, आप ये समझ पाते हो कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आओ तभी आप कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। आप अगर चाहो कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो एवरी डे, एवरी मिनट, द स्टार्ट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर।
इट इज़ ओनली दैट यू हैव द विल पावर टू डू इट. तो बहुत छोटी उम्र से मैंने ऑफिसर्स को देखा, उनके बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाई. इन्हीं के IPS ऑफिसर रहे मिस्टर मोहन राव, अरुणा राव. दे वर पोस्टेड एट दैट टाइम हियर. उनका छोटा 2 साल का बेटा था. आई टॉट हिम फॉर 3 years when they were posted here. I have seen the struggle that, you know, it is not easy for them also. Both the parents were in services, the child was alone. So I used to spend time with him. I used to learn also, I used to teach him also. So I would just conclude here that when the going gets tough, the tough gets going, and it's every day is a learning only. You should always count your blessings more rather than what you have lost and which was not in your control. So I'm happy. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही मैम आपने कि हमें हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है कई उसके सपने देखते हैं. मेरा अगला सवाल होगा कि आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, आपने BDS, MD, MBA, एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में PhD किया है, और मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में इन दोनों ही क्षेत्रों को एक साथ संभालना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रही, प्रेरणा कहाँ से मिली? चुनौती तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, क्योंकि आप जब मेडिकल प्रोफेशन में होते हो तो प्रबंधन उसका हिस्सा होता ही है. आप एक बेहतर प्रबंधन के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको हर चीज़ के परफेक्शन का ध्यान रखना होता है. दिस फील्ड इज़ समथिंग वेयर यू डील विद द लाइव्स ऑफ द पीपल. मैंने MDS किया है, MD नहीं किया है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी. आई एम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन. So with my education also, and gradually I got to, you know, update myself through different aspects also. PhD भी किया मैंने, उसके साथ मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया. बट आई ऑलवेज फेल्ट कि देयर इज़ ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर. आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए. एंड विद कमिंग डेज एंड टाइम, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने अभी AI पे बात की, तो इट्स रियली अ टाइम व्हेन यू नीड टू अपग्रेड एंड अपडेट योरसेल्फ एवरी टाइम. No education, no degree is enough. Of course, they do add value to your personality, but आपको अपडेट तो करते ही रहना है. और तभी आप जिस भी क्षेत्र में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप सबसे बेहतर आप तभी दे सकते हैं जब आप डे टू डे अपडेट कर रहे हैं अपने आप को और उसको अपने एग्जीक्यूशन में ला रहे हैं. बहुत अच्छा लगता है जब किसी महिला से बोलो कि आपने इन चुनौतियों का सामना किया, और महिला ये बोले कि वो चुनौतियां नहीं थी, वो मेरा सौभाग्य था और उसने मुझे आज यहाँ पर पहुँचाया है. कोविड के टाइम की बात करते हैं. आप चीफ कोविड कोऑर्डिनेटर रही हैं, उसमें आपने किस तरह की भूमिका निभाई है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि उस वक्त में ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से सिनारियोज़ आपने देखे हैं जिनको संभालना शायद तक मुश्किल हुआ हो? मैं आपको फिर कहूँगी कि आप, मतलब क्योंकि शायद मैं महिला हूँ और आप लोग यूज्ड टू हो कि महिलाएं चुनौती और जिम्मेदारी और मुश्किलों की बात करती हैं. आई एम नॉट लाइक दैट. आई वुड अगेन से दिस कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. I, not being from the MBBS or MS, my husband is orthopedic surgeon, but I will again repeat that I am oral and maxillofacial radiologist. I would say that COVID was the time when I actually got the platform to show my capabilities. It was a tough time, it was a pandemic, no doubt, and there was scarcity of resources. We were not getting sufficient people, there was no understanding about what kind of infection and pandemic this is. People were scared. And at that time I was working in the college, which is technically in a rural area. So you understand how difficult it is to explain this to the population who is belonging to a rural area as compared to the urban population. Again, I would say that my chairman, Shri Suresh Bhadoria, he trusted my capabilities. I, being coming from a dental profession, he again gave me the platform to perform, to manage, and I was into the administrative role in COVID. So I was technically dealing with the district administration and the government part of how many patients are taking admissions, discharges, COVID positive, their sampling. So I was able to manage this just because I was getting the appropriate support from where I need to get. It was very challenging situation, of course, because there was no understanding about what kind of infection we are dealing with. People were scared. There were lack of resources. But eventually district administration, government of Madhya Pradesh, my immediate hospital administration, management, everybody supported, and we all were wanting and working in a one direction that somehow we should able to contribute in these tough times.
Thankfully, we were able to manage it pretty well, and I would proudly mention here that Index Medical College was having zero mortality in wave 1. We were in the yellow zone, and the patients coming to us were symptomatic patients, but not critically ill. So 100% results were there, and patients were good. They felt good. They came to the area which was in rural area. The environment was good. Climate was good. So on all those supporting factors were also there along with the medical treatment. District administration also trusted us when it was second wave. Patients were critically ill, and again we got the opportunity to serve and to contribute to the society. Not only this, when Radha Swami Satsang Vyas was taken as a COVID center, so our team of doctors, our team of workers, our supporting staff, our nursing staff, they all went there also. And majorly and primarily we dominated that place also, and we contributed in a way that we were able to manage that particular premises also successfully. So COVID was a tough time, no doubt, but with a good team, good management, good support from district administration, I was able to do it. But yes, of course, I was scared at some point that things are not going the way it should be. But of course, because I told you, my mother taught me that you have to be, the survival thing should be every day, and it's an everyday fight, so it went. बिल्कुल, कोविड ऐसा समय था जिसने बहुत कुछ बदला है और लोगों को भी बदलने का मौका दिया है, क्योंकि आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, नगर उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से और मेडिकल सेक्टर से भी आती हैं. अगर मैं दोनों ही सेक्टर्स को देखूं, एक तरफ पॉलिटिक्स को देखूं और दूसरी तरफ मेडिकल सेक्टर को देखूं, तो दोनों को जोड़ करके समाज में क्या बदलाव लाने की आपकी इच्छा है? देखिए, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर, दैट इज़ मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये पहुँचे और अंतिम पंक्ति तक ये बात पहुँचे कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र से आती हूँ, मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ. तो मेरा अगर राजनीति के विषय में भी ये बात की जाए तो मेरी सोच यही है कि हम, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भी जो योजनाएं हैं, उनका उद्देश्य भी यही है कि अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ पहुँचे. Thankfully, even my chairman, my vice chairman from Index Medical College and Malvanchal Group, Amaltas Group, all serving in the rural area, जहाँ पे वो population ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य लाभ उतना नहीं मिल पाता है. सरकार ये सुनिश्चित करती है मिले, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी रह जाती है. So we are able to work as a bridge. और महिला होने के नाते, चिकित्सा क्षेत्र से होने के नाते, मेरा जो प्रथम ध्येय है वो यही है कि निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ पहुँचे, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले, बच्चों को इसका लाभ मिले, और शिक्षा के एक महत्व को आप पहुंचा पाओ कि महिलाओं का शिक्षित होना, स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो किसी भी क्षेत्र में है, अगर वो राजनीति में भी आना चाह रही हैं, तो ये संदेश इस मंच के माध्यम से मैं देना चाहूँगी कि आपको किसी व्यक्ति विशेष का परिक्रमा करके आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे. आप शिष्टाचार में लोगों से मिलें, लेकिन सिर्फ मिलना ही है लोगों से और लगातार लोगों के पीछे भागते रहने से आप खुद कहीं नहीं पहुंच पाओगे. आपको खुद भी कुछ करना होगा. देयर शुड बी सम सब्सटेंस. थैंकफुली अगेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आना तो नहीं चाहती थी, बट कोविड में मैंने देखा कि इफ़ यू आर नॉट समथिंग तो यू आर नॉट हर्ड, यू आर नॉट सीन, यू आर नॉट एक्नॉलेज्ड. इफ़ यू वांट कि आपकी आवाज़ पहुँचे और उससे कुछ बदलाव हो, तो यू हैव टू बी समथिंग. एंड दैट वॉज समथिंग विच गेव मी कि आपको खुद किसी पोजीशन पे होना पड़ता है कि आप कोई बदलाव ला सको. और अब क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में समानता रखती है, और अभी भी जैसे बात हुई है कि मोदी जी महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं. मैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुत ही छोटी कार्यकर्ता और बहुत नई कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे उसका उतना अनुभव नहीं था, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र का था. तो मैं आपको ये मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे मैनेजमेंट के साथ साथ महापौर जी, हमारे स्थानीय विधायक श्री रमेश मेंदोला जी, इन सबके सहयोग से और मार्गदर्शन से मुझे संजीवनी क्लिनिक में और संजीवनी क्लिनिक को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्थापित करने का अवसर मिला. और सफलतापूर्वक हम 4 संजीवनी क्लिनिक विधानसभा 2 में जो है इस्टेब्लिश कर चुके हैं, और कम से कम 400-500 पेशेंट्स को निःशुल्क इलाज मिल रहा है. तो मैं, आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं क्यों आना चाहती हूँ, तो मैं इसीलिए आना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी जो काम बचा है,
मैं अगर उसको थोड़ा भी कर पाई, आगे बढ़ा पाई, तो वो उसको मैं सफल मानूंगी कि मेरा उस सोच के साथ चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ राजनीति में आने से कुछ लाभ लोगों को मिला। बिल्कुल, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं इसी को लेकर के कि आपका जो उद्देश्य है समाज में महिलाओं को मजबूत बनाने का, चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों तक निःशुल्क उपचार उन तक पहुंचे, वो जरूर आप पूरा कर पाए। बहुत शुक्रिया है दीप्ति सिंह जी आपका हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।